Hello, my dear students of class 9. So, welcome back to another class at Ganit Guru YouTube channel. So, today we are going to have a special chapter named Heron's Formula, and this chapter is going to be very special for class 9. And from this chapter, many more questions is being asked, and students are often confused why we are doing this chapter. Just only to find area, and why not we are doing by the previous half into base into height and all this. So from first to last, we will try to cover all the concepts of triangular part. In the next session, we will talk about trapezium, rhombus, and quadrilaterals. So without wasting time, let's start the journey of zero to hero. So हम पहले जानेंगे Heron's formula क्या है. There was a mathematician named Heron who has given formula for calculating the area of triangle. For calculating area of triangle. So this formula is basically mean to calculate area. Which type of triangle? For each and every. It may be equilateral. It may be isosceles. It may be scalene. So what is equilateral, isosceles and scalene? Let us know first. So whenever we have all the sides are equal, where if all the sides are equal, we call it as equilateral. Three sides are same. Whenever two sides are equal and third sides are not same, we call it as A and this one as B. We call it as isosceles triangle. Whenever we have triangle where all the sides are different, we call it as scalene triangle. At the same time, whenever based on angle we talk about right angle triangle, we have one more, a right angle triangle. We know very clearly that whenever we calculate the area of right angle triangle, that means this angle is 90 degree. In this case, we can use area equal to half into base into height. Half into base into height we can use. Why not? We can use there also. But what is the requirement? We need height also. We need height. But if height is not given, then the dilemma begins. Here also we have formula: equilateral triangle, scalene triangle. Now let's see one by one. Whenever we talk about the area of equilateral triangle, what is the area? A for area, it is √3/4 s square. Yes, we can use the formula of equilateral triangle √3/4 s square. What is the formula for isosceles triangle? Yes, it's nothing but what? Root a square minus b square divided by 4. Using this one where a is the equal side, b is the third side, we can calculate the area of isosceles triangle. And area means how much space is there. Okay, that is nothing but area. But in case of scalene triangle, how to find the area? So Heron was once upon a time was a great mathematician who has given formula using half into base into height. Obviously, he has derived the formula using half into base into height and created a special formula where area is equal to square root of s minus a, s minus b and s minus c. Now what s means? S means semi perimeter. That means half of perimeter. Whatever perimeter will be given, you have to make it half divided by 2. Then we will get s. Now what is the a, b and c? A is the first side. Any side you can take as a, and second side, then third side. Isn't it? Now the most important thing is what? Do you know? That this formula is meant for equilateral triangle. This formula is meant for this triangle. This formula is meant for right angle triangle. But Heron's formula is made for all those. So this is the beauty of Heron's formula, that you can use this formula to calculate the area of all those. एक ही सब पे भारी. अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. अगर हमको कोई बोलता है कि अगर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जहां पे ये वाला साइड 13 है, ये वाला साइड 14 है और ये वाला साइड 15 है, ए बी सी का एरिया स्पेस कितना है निकाल के बोलो.
हम क्या बोलेंगे, हियर a is equal to square root of s minus a, s minus b, s minus c, जहां पे हमको s और abc का वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे हियर a का वैल्यू क्या है 13 मीटर फॉर एग्जांपल, b इज इक्वल टू 14 मीटर, c इक्वल टू 15 मीटर। सो s इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, a b c, मतलब यहाँ पे कितना होता है 13 14 15, टोटल कितना आता है यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 21 मीटर। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे 21 मीटर सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाता है। सो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट बना देंगे, फिर 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15 कर दो उसको। अब कैसे करना है देखो, 21 को कैसे करते हैं 3 7 जा लिख सकता है 21। हाँ, इसमें क्या आएगा, इसमें अगर हम माइनस करें यहाँ पे कितना आता है 8 आता है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्यों इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख रहा है हम बताएंगे। 21 माइनस 14 कितना आता है 7 आता है, अभी इसमें क्या आता है 6 आता है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। हम अभी बोल रहे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसको रूट के बाहर निकालना है। जिसको भी पेयर दिखता है हाँ निकाल दो, मतलब 7 का यहाँ पे पेयर है निकल के आ जाएगा, 3 का यहाँ पे पेयर दिख रहा है निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 पेयर दिख रहा है निकल के आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 7 3 21, यहाँ पे 84 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों हमने यहाँ पे एरिया निकालना सीख लिया। हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, सो इन दैट कंडीशन यहाँ पे हाइट देना जरूरी था। अगर हाइट नहीं है तो हम इसी मेथड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हाइट दिया है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है, मतलब कहीं भी स्केलिन बोलो आइसोस्केलिन बोलो इक्विलेटरल बोलो, अगर हाइट दिया है ना तो तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। लेकिन अगर हाइट नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, इसी मेथड से कर देना है। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोगों को देखने मिलता है अलग क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो। हाँ, अभी साइड पर्टिकुलरली नहीं बोला गया, ठीक है। लेट द साइड बी 5x 12x एंड 13x, वो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, नाउ हमको क्या बोला गया कि तीनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे बोला कि पेरीमीटर क्या है 150 मीटर। इसका मतलब ये है कि 5 12 और 13 मिला के कितना होता है 30x ना इक्वल टू 150 मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना आता है 150 डिवाइडेड बाय 30। सही है, सही है। यहाँ पे 0 0 काट दो, यहाँ पे 5 निकल के आ जाता है, मतलब यानी कि x का वैल्यू क्या है 5। देयरफॉर 5 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5x इक्वल टू मतलब 5x इक्वल टू मतलब फर्स्ट वाला साइड था ना 25 मीटर, सेकंड साइड कितना था 12x मतलब 12 इंटू 5 कितना था 60 मीटर, फिर 13x मतलब क्या था 13 इंटू 5 65 मीटर। हाँ, अब हमारा ये वाला साइड निकल के आ गया है। नाउ अगर हम यहाँ पे s के बारे में देखें, सो s क्या होगा 150 तो दिया है, उसको काट दो और आंसर कितना होगा 75 मीटर। देन एरिया क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 75, s ऑफ s माइनस है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 75 माइनस 25, 75 माइनस 65। और एक चीज आपको ऐसा नहीं लिखना है कि अच्छा ये वाला फर्स्ट था, ये वाला सेकंड था, ये वाला थर्ड था, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले 60 को हमने लिख दिया, लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में है। 75 को क्या लिख सकते हैं आसानी से करने के लिए, सो 3 इंटू 25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर 25 का दूसरा पेयर मिलता है तो एक ही बार में हम कर सकते हैं ना। सो इधर कितना मिलता है हमको, देखो यहाँ पे 75 माइनस 16 क्या होता है, 60 क्या होता है 15 होता है ना, सो 3 इंटू 5 लिख दे। ठीक है, अब 75 माइनस 25 कितना होता है, यहाँ पे 2 इंटू 25 लिख सकते हैं, 50 आता है ना। हाँ, फिर लास्ट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 आता है, मतलब 2 इंटू 5 लिख दे। ठीक है, यहाँ पे 25 का पेयर बनता है, हाँ निकाल दो, 3 का पेयर बनता है निकाल दो, 5 का पेयर बनता है निकाल दो,
2 का भी पेयर बनता है, निकाल दो। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या मिला हमको? 25 2 50, 53 150, 150 into 5 यानी कि 750 मीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया निकालने जाओ ना, आपको क्या करना है? हमेशा मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा ये वाला क्वेश्चन करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 मीटर। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड ऑफ इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर मैं यही क्वेश्चंस को फिगर के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे क्या मिलता है? द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 मीटर। हाँ, पेरीमीटर दिया है, गिवन क्या गिवन है? P is equal to 32 मीटर। अच्छा, द रेशियो ऑफ इट्स इक्वल साइड टू इट्स बेस। हाँ, इसका मतलब रेशियो क्या है? ये वाला 3x होगा, ये वाला भी 3x होगा, और लास्ट वाला क्या होगा? 2x होगा। सही है ना? हियर 3x प्लस 3x प्लस 2x, ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। 2x इक्वल टू कितना आता है? यहाँ पे 32 निकल के आता है, ठीक है। 6 7 8, 8x इक्वल टू 32। फिर हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 32/8 कितना आएगा? 4। हाँ, x का वैल्यू 4 है, देयरफॉर 3x इक्वल टू 12 मीटर, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, निकल के आ गया। मतलब हमारा यहाँ पे तीनों साइड बराबर है, मतलब इसको a भी लिख सकते हैं, b भी सेम है ना? हाँ, b भी सेम है। देखो, तुम इसी फॉर्मूले को, क्योंकि तुमको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में एरिया निकालने के लिए बोला, तुम क्या कर सकते हो? तुम वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, b/2 रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको पूरा करना है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एरिया अब क्या होगा। इसके पहले हम जान लेते हैं एस क्या होगा। एस क्या होगा? 32 डिवाइड बाय 2, मतलब यानी कि 16 मीटर। सो एरिया हम क्या बोलेंगे? एरिया हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस है, मतलब 16 माइनस 12, फिर 16 माइनस 12, हाँ 16 माइनस 8। ये वाला बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, अप्लाई कीजिए। हाँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 into 4 लिख सकते हैं ना। 16 माइनस 12 कितना आता है? यहाँ पे भी 4 आता है, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस 12 भी, यहाँ पे भी 4 आता है, और लास्ट में क्या आता है? यहाँ पे 16 माइनस 8 आता है ना, मतलब यहाँ पे क्या करना है? 8, मतलब 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 को हमने 4 into 4 लिखा, यहाँ पे 16 माइनस 12 को हमने 4 लिखा, मतलब 4 पेयर है, 2 पेयर है ना, तो यहाँ पे 4 into 4 निकाल देंगे। यहाँ पे भी 2 है, 2 निकाल देंगे। और कौन फंस गया अंदर? √2, मतलब 2 अंदर फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका पेयर जोड़ी नहीं है, इसलिए 4 4 16, 16 2 32, 32 √2 मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3, ये वाला क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड है। अगर बोलता है कि एरिया गिवन है, हम क्या लिखेंगे? गिवन एरिया इज इक्वल टू 36√3। और हमको क्या सिखाया गया पहले पेज में? सर ने क्या बोला था? मैंने √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3। हाँ, यहाँ पे क्या करना है? आपको √3 काट देना है, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है? 36 into 4, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना दो, मतलब a का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 12 मीटर। खत्म, सही है ना? मतलब साइड निकल के आ गया। ए मतलब क्या है? ए मतलब जहां पे हम लोगों को क्या बताया गया था? ए मतलब साइड, एरिया नहीं है, मतलब साइड निकल के आया बेटा, ठीक है। सो हमको क्या निकलने बोला? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3 into साइड और 3 into a, मतलब यानी कि 3 12 का आंसर क्या होगा? 36 मीटर। सही है, बहुत ही मजे से हम लोग इसको कर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये वाला आज के इस क्लास में सिर्फ ट्रायंगल रिलेटेड मैं बात करूंगा। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा रोम्बस को लेकर, क्वाड्रिलेटरल का जितना भी क्वेश्चन बनता है वहां से हम सवाल देखेंगे। ट्रेपेजियम का कुछ स्पेशल क्वेश्चन है
उसको हम देखेंगे, काइट का कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर रेगुलर अपडेट आपको चाहिए, और अगर मैथ्स रिलेटेड आपको बहुत कुछ सीखना है एवरीडे, सो बहुत ही आसानी से हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर। फिर हम फिगर के मदद से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि इसका बेस कितना है, 80 सेंटीमीटर, सही है। एंड इट्स एरिया इज 360। एरिया दिया है क्या है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो उसको। हियर एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे एरिया क्या दिया है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। मतलब एरिया का फॉर्मूला अगर देखें हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे एक हाइट बना दे, हाइट नहीं मालूम ना, यहाँ पे हमने एक हाइट बना दिया, ठीक है। हाइट बनाने के बाद मैंने बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 360। फिर क्या करना है हमको, हाँ फिर देखना है कि इसको कैसे करते हैं। बेस तो हमारे पास है, सिर्फ नहीं है तो क्या है, हाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 उधर जाएगा, बेस कितना था, 80 था ना, हाँ 0 0 काटो उसको, 2 से काटो 4, हाँ इसमें हाइट क्या निकल के आया, हाइट निकल के आया 9 सेंटीमीटर। हाँ इसका हाइट क्या है, 9 सेंटीमीटर। सो अगर हम देखें ये वाला हमने क्या ड्रॉ किया, मीडियन। अगर ये वाला मीडियन है ना, सो ये वाला होगा 40, ये वाला होगा 40, यानी कि इधर वाला होगा 40, इधर वाला होगा 40 और इधर वाला होगा 40। यानी कि हमको अभी क्या मालूम है, ये वाला 9 है, नीचे वाला 40 है, हमको यहाँ पे ले लेना A B C, ठीक है। हियर इन ट्राइंगल A B, और बीच वाला को हम क्या ले लेंगे, D ले लेंगे, A B D ले लो, ठीक है। हमको क्या चाहिए, AB चाहिए, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। देखो बेटा पाइथागोरस फिर यहाँ पे आ गया है। सो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 40 स्क्वायर मतलब 1600 प्लस 81, और इसको अगर जोड़े 1681, टोटल कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 41 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि AB का वैल्यू क्या है, यहाँ पे AB का वैल्यू है 41, सही है। AB का वैल्यू है 41, यानी कि सो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल पेरीमीटर इक्वल टू यहाँ पे 41 41, यहाँ पे 80, मतलब 41 प्लस 41 प्लस 80, यानी कि 162 सेंटीमीटर। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये वाला क्वेश्चन, और क्या आंसर निकल के आता है, 162 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, यानी कि जहां पे तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, क्या है, 60 सेंटीमीटर। इट्स एरिया निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे पेरीमीटर अगर दिया है ना, हमको क्या करना है, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनता है, 3A, यानी कि 60, मतलब A कितना होगा डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड का वैल्यू कितना है, 20 20 20, खत्म। सो हमको A ही निकालना था। सो एरिया इज इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर, यानी कि √3/4 A मतलब क्या है, 20 स्क्वायर, यानी कि अगर हम बोले 20 इंटू 20 भी लिख सकते हो। अगर हम बोले यू कैन राइट 20 इंटू 20 ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे लिखो आप, फिर क्या लिख सकते हो, 25 से 100, 100 इंटू √3, 100 √3। और अगर आप √3 का वैल्यू अगर 1.732 ले लो, 1.732 ले लो, यानी कि आंसर क्या निकल के आएगा, 173.2, यहाँ पे ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आया, 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ बच्चों हमको क्या निकालने बोला, हमको बोला कि यहाँ पे हाइट भी निकाल दो। अगर हमको एरिया निकालना आ गया ना, सो देखो यहाँ पे हियर एरिया इज इक्वल टू क्या है, 100 √3 लिख दो।
एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो हम उसको लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस तो यहाँ पे 20 लिखा गया है, हाइट हमको नहीं मालूम क्योंकि हमको ये वाला हाइट निकालने के लिए बोला। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से उसको काटेंगे, ठीक है। क्या हुआ 10 ना, हाँ, हाइट इज इक्वल टू क्या निकल के आता है यहाँ पे 100√3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10√3 सेंटीमीटर। हाइट क्या निकल के आया, हाइट निकल के आया 10√3 सेंटीमीटर, एंड दैट इज योर आंसर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था ना, हाँ, बेस हमारा यहाँ पे 20 निकल के आ रहा था, ठीक है। और यही है ना, क्योंकि आप किसी भी फॉर्मूले से करो, अगर आपको यहाँ पे हाइट नहीं पता हम लिख सकते हैं, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे अगर एरिया यहाँ पे निकाला, सेम हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, सही है ना। फिर यहाँ से बेस हमको मालूम था, हाइट नहीं है, सो हाइट हमने निकाल दिया। सो बच्चों, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वाला क्लास, और राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल।